Hello and welcome. Today in this video lecture we are going to solve another exercise from our chapter of class 10th mathematics, geometrical properties of circle. So आज इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो थ्योरम है that is related to a cyclic quadrilateral and the theorem is such that opposite angles in a cyclic quadrilateral of a circle are always supplementary. So इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आज इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. So सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. So क्वेश्चन नंबर 1 में we have a cyclic quadrilateral जिसमें हमें दो वेरिएबल्स हैं जो कि फाइंड आउट करने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. सो एज वी कैन सी वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल x, y, z एंड p. लेट सपोज ये हमारे पास चार वर्टेक्स हैं इसमें एंड द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. सो ऑपोजिट एंगल इन दिस क्वेश्चन आर x एंड p. सो ये एंगल x एंड ये एंगल a ये दोनों हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस a प्लस 86 शुड बी इक्वल टू 180 degrees. So for the value of a we can subtract 86 from 180. So 180 minus 86 would be equal to 94. So value of a we got is 94 degrees. Then we have the next variable b, और इसे भी फाइंड करने के लिए हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट b plus 105 will be equal to 180 degree. So value of b will be equal to 180 minus 105. तो 180 में से हम 105 को माइनस कर देते हैं. So we will get 75. So value of b in this question will be equal to 75 degrees. Similarly, let's see question number 2. In this question, once again we have a cyclic quadrilateral. So इसमें सबसे पहले अगर हम d मालूम करें, so d will be equal to 180 minus 96 because this 96 and angle d will be supplementary. So 180 में से अगर हम 96 माइनस कर दें so we will get 84. So value of d will be equal to 84 degree. Then हमें c मालूम करना है. So for c सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल मालूम कर लेते हैं एंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन these two angle will be supplementary. So 180 में से 101 को माइनस करेंगे so we will get 79 degree. And c will be equals to 180 degree minus 79. So value of c will become 101 degrees. So we have variable c and d as 84 degrees and 101 degrees. Now let's see question number 3. So in this question we have to find the values of x and y. So we know that the angle x and this angle are the opposite angle of a cyclic quadrilateral. तो सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल मालूम करते हैं एंड इस एंगल को मालूम करने के लिए हम 180 में से 92 माइनस कर देंगे so we will get 88. So ये एंगल हमारे पास आ गया 88 and this x is the opposite of 88. तो ये इक्वल हो जाएगा 180 minus 88. So माइनस करेंगे तो we will get 92 degrees. तो value of x will become 92. इसी तरह से y मालूम करने के लिए हम इस 116 का ऑपोजिट एंगल मालूम करते हैं जो कि सप्लीमेंट्री होगा. So 180 में से 116 सब्ट्रैक्ट करेंगे so we will get 64. तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 64 एंड 180 में से वंस अगेन 64 माइनस करेंगे so we will get value of y. So 180 minus 64 will be equal to 116. So ये हमारे पास वैल्यू आ गई for y and we have got the value of x as 92. Now let's see question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मौजूद है। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, दैट दिस D and this 3D, these two angles are opposite angles, so it's mean D plus 3D will be equal to 180 and 4D will be equals to 180. So the value of D will be equals to 180 over 4. So 180 over 4 will be equal to 45. So variable D की value हमने मालूम की, that is 45. Similarly, this angle 2C and this angle C are opposite angles. So equation would become 2C plus C equals 180 degree. सो C वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हम 180 को डिवाइड कर देते हैं 3 से। सो वी विल गेट C इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट की। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 में we have to find this variable h and one more thing, that the side AB and AD, these two sides are equal. This means that the both angles opposite to this side will also be equal. So इस equal sides के सामने यहाँ पर h फॉर्म हो रहा है. So this means कि यहाँ भी opposite side पे एंगल h फॉर्म होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये एंगल मालूम करते हैं जो कि 180 से सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा। सो 180 में से अगर हम इस 106 को माइनस कर दें सो वी विल गेट 74। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 74 जो कि हमने 180 में से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट किया। देन एंगल C जो कि 74 है और एंगल A मालूम करने के लिए हम 180 में से 74 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल गेट द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो ये हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्रीज। सो H मालूम करने के लिए वी विल कंसिडर द ट्राइंगल A, B एंड D। इस ट्राइंगल के अंदर we know the three angles, two angles are H and one is 106. So equation would become 106 plus H equals to 180 degree. So H मालूम करने के लिए हम 180 में से 106 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं and this divided by 2, the value of H will become 37। तो यहाँ से हमारे पास जो H की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 37 डिग्रीज। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें वैल्यू ऑफ M मालूम करनी है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट एज द प्रीवियस वन अप्लाई करते हैं। these two sides are equal, this means that these two angle will also be equal. so अगर ये एंगल 31 है so this angle will also be 31 degree. so इन दो 31 degrees की मदद से हम ये एंगल D मालूम करते हैं। we know that the sum of angle of a triangle is 180. so अगर हम 180 में से इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें 180 minus 31 minus 31 will become 118. सो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 118। इस 118 की मदद से हम ये एंगल मालूम करते हैं जो कि इस ऑपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। सो 180 में से 118 को माइनस करके हम इस एंगल को मालूम कर सकते हैं। सो 180 माइनस 118 विल बी इक्वल टू 62। ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 62। देन M मालूम करना है तो M और 62 ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। सो द वैल्यू ऑफ M विल बी इक्वल टू 180 माइनस 62। सो 180 में से 62 को माइनस कर देंगे सो वी विल गेट 118। सो वैल्यू ऑफ M विल बी इक्वल टू 118 डिग्री। सो यहाँ हमारे पास वेरिएबल M की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और साथ साथ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ हमारे पास एक सेंट्रल एंगल भी फॉर्म हो रहा है। सो सबसे पहले तो अगर हम एंगल B और एंगल D को देखें सो दीज टू आर द एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिनका सम वी नो दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल B इक्वल्स टू E प्लस 4E will be equal to 180 degree. So 5E will be equals to 180
डिग्री। सो वैल्यू ऑफ ई फाइंड आउट करने के लिए 180 को हम डिवाइड कर देते हैं बाय 5, वी विल गेट 36। सो वैल्यू ऑफ ई विल बी इक्वल टू 36। सो यहाँ हम नोट कर लेते हैं एंगल ई इज 36 and this angle E and angle F, these two angles are the angle, one is the segmental angle and the other is the central angle. angle F हमारा central angle है जबकि angle E जो है वो segmental angle है और ये दोनों angles form हो रहे हैं with the chord formed between A and C, and the relation is such that the central angle is double of the segmental angle. So F will be equals to 2 times E. So value of E is 36. So the value of F, the central angle, will be equal to 72 degrees. So F is equal to 72. Let's come to question number 8 जिसमें हमें वेरिएबल y मालूम करना है. So y मालूम करते हैं. In this question, as we can see, these two sides are equal. It's mean जो एंगल y फॉर्म हो रहा है वो इस साइड इस एंगल के भी बराबर होगा. सो यहाँ हमारे पास ट्राइंगल में दोनों एंगल y हैं और यहाँ पर भी ये दोनों साइड जो है वो इक्वल हैं. वन इज दिस साइड एंड द अदर इज दिस साइड. ये दोनों साइड्स बराबर हैं. सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, जो साइड है ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे. तो सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल मालूम कर लेते हैं. दिस टू एंगल 140 एंड दिस एंगल फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो अगर ये 140 है तो ये एंगल इक्वल होगा 40 डिग्री के और ये एंगल 40 डिग्री है. तो हमारे पास ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, लेट्स से दिस इज z, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं. सो 40 प्लस z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से हम जो है वो z को मालूम करते हैं. सो z विल बी इक्वल टू 180 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2. सो हम 180 में से 40 को माइनस कर देते हैं. सो वी विल गेट 140 एंड दिस 140 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 70. सो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाती है 70 डिग्री के. यहाँ हमने एक वेरिएबल एज्यूम किया था, 70 डिग्री आ गया. सो दिस एंगल C and this angle E, these two angles are supplementary. They are the opposite angle of a cyclic quadrilateral. So this angle is 70. So this angle will be equal to 110. ये एंगल हमारे पास 110 आ गया और इस 110 की मदद से हम इस आइसोसेलेस ट्राइंगल से वैल्यू ऑफ y को मालूम करेंगे. सो 110 प्लस y, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो y मालूम करने के लिए 180 में से 110 को माइनस करते हैं. सो 180 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2. सो वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 35. सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, दैट इज 35. तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया फॉर y. Now let's see question number 9. इस question number 9 में हमारे पास एक diameter मौजूद है. AB is the diameter. So इस diameter के से related थ्योरम जिसमें diameter की मदद से जो सेमी सर्कल में एंगल फॉर्म होता है, it is always equal to 180. So एंगल C है जो कि diameter के opposite फॉर्म हो रहा है और इस right angle triangle के अंदर we know that x plus 72 plus 90 will be equal to 180 डिग्री. सो x मालूम करने के लिए हम 180 में से इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 180 माइनस 90 माइनस 72. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 18 degrees. Once again the same concept जिसमें हमें value of m मालूम करनी है. Once again AB in this question is a diameter and the angle opposite to the diameter is angle m. So this will be equal to 90 degree. और अगर हमें इस एंगल को भी मालूम करना हो तो हम 180 में से 90 और then 33 माइनस कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. सो 180 में से इन दोनों को अगर हम एंगल्स को माइनस करें तो ये एंगल भी हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज
57 degrees. Then let's see question number 11. Once again, this AB is a diameter and the angle opposite to the diameter is 90 degree. So इस यहाँ पर भी हमारे पास एक right angle triangle form हो रहा है. So this means all the angles of this triangle will be equal to 180 degree. So अगर हमें यहाँ से A मालूम करना है, सो 3A विल बी इक्वल टू 90. इस 90 को वहाँ ले जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो इन दिस वे A विल बी इक्वल्स टू 90 over 3. सो वैल्यू ऑफ A विल बी इक्वल टू 30 degrees. Then we have question number 12. Question number 12 में भी हमारे पास diameter मौजूद है. So diameter के opposite we will have 90 degree. So यहाँ भी हमारे पास कुछ इस तरह की equation बनेगी. X plus 3x plus 90 is equal to 180 degrees. So 4x will be equal to 90. ये 90 वहाँ जाके subtract हो जाएगा. So x will be equals to 90 divided by 4. So 90 को divide कर दें into 4, we will get 22.5. So value of x is 22.5 degrees. Let's come to question number 13. So इस question number 13 में हमें इन तीन variables को मालूम करना है t and w. सो सबसे पहले तो अगर हम देखें हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं. वन इज दिस साइड एंड द अदर इज दिस साइड. सो अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो दिस मींस के साइड एंगल्स ऑपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल. सो यहाँ भी हमारे पास W फॉर्म हो जाएगा. वन मोर थिंग इज ये जो साइड है OA एंड OB. सो OA equals to OB because these two are the रेडियस ऑफ द सर्कल. सो ये दोनों रेडियस हैं जिसकी वजह से दोनों साइड्स बराबर होंगी. सो इन दिस वे दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 32 डिग्री. और इन दोनों एंगल्स की मदद से वी कैन फाइंड दिस सेंट्रल एंगल. सो सेंट्रल एंगल को मालूम करने के लिए 180 में से हम इन दोनों 32s को माइनस कर देंगे. सो वी विल गेट 116. ये एंगल हमारे पास आ गया 116. इसी तरह से अगर हमें t मालूम करना है सो 116 एंड t lie on a straight line. So t will be equals to 180 minus 116 that is 64. So t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह OA OB are the radius and OC is also radius. So OB and OC are equal. This means that the angle opposite to them will also be equal. So अगर इस radius के सामने एक angle N form हो रहा है, so similarly the OB side के सामने जो angle होगा it will also be equal to N. So N के लिए हमारे पास equation form हो जाएगी 64 plus N equals to 180. सो n मालूम करने के लिए हम 180 में से 64 माइनस कर देते हैं. 180 माइनस 64 इज 116 डिवाइडेड बाय 2. सो वैल्यू ऑफ n हमारे पास आ जाएगी 58. सो n भी हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज इक्वल टू 58. सो ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विद द एंगल W. सो एंगल W मालूम करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम ये वाला एंगल जो D है इसे मालूम करते हैं. वी नो दैट द एंगल D एंड एंगल B ये दोनों एंगल जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल है और इनका सम जो है वो इक्वल होना चाहिए 180 डिग्रीज के. सो एंगल D इज द अननोन, तो एंगल D मालूम करते हैं. और एंगल B पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. वन इज 32 एंड द अदर इज 58. सो ये दोनों एंगल्स हैं एंगल B पे, ये पूरा सम इक्वल करें दैट इज इक्वल टू 90. सो एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल D भी हमारे पास 90 डिग्री ही आएगा. एंगल D इक्वल्स टू 90. सो यहाँ हमारे पास अगर 90 डिग्री आ जाता है तो एंगल W मालूम करने के लिए हम 180 में से इसकी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं दैट W प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो इस तरह से हमारे पास जो W की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 45.
सो आर W इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू आ गई। इन दिस वे हमने यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर तीनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट किया। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए, बी एंड सी इन तीनों एंगल्स को मालूम करना है। सो सबसे पहले तो अगर हम ए बी देखें तो ए बी इन दिस क्वेश्चन इज आर diameter. So diameter है हमारा, तो opposite to them will be equal to opposite to them will be 90 डिग्री। सो यहाँ हमारे पास 90 डिग्री फॉर्म होगा, और इस 90 डिग्री की मदद से हम इस एंगल C को मालूम कर सकते हैं, बिकॉज दिस 50, 90 एंड C। सो 180 में से अगर हम 90 और 50 सब्ट्रैक्ट कर दें तो C विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। सो C हमारे पास 40 डिग्री आ गया। Then we can assume our chord as DC. अगर हम DC chord को assume करें, so this angle B and angle C, ये दोनों एंगल जो है वो फॉर्म हो रहे हैं with the same chord, so the value of B will also be equal to 40 degree. So B 40 degree है because B and C they both are the chord angles in the same segment of the chord DC. So इस तरह से हमने दो एंगल्स मालूम कर लिए। देन अगर हमें ए मालूम करना है तो ए के लिए हम सिंपली एक चीज करते हैं, दैट इज ये वाला एंगल है जो कि हम 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। सो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री, बिकॉज दिस 50 एंड 130 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो फाइनली ए मालूम करने के लिए वी कैन टेक दिस ट्राइंगल जिसमें वन एंगल इज 18, the other is 130, so we can find the value of A by subtracting these two angles from 180. So 180 minus 18 minus 130. So value of A will be equal to 32 degrees. So in this way we have find these three angles A, B and C. Now let's see question number 15 and 16. So in this question हमारे पास दो एंगल्स हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने। वन इज द ए एंड द अदर इज सी, जिसमें हमारे पास जो साइड है ए बी इट इज इक्वल टू डायमीटर है ये। सो एंगल ऑपोजिट टू देम विल बी इक्वल टू 90। सो यहाँ जो एंगल C पे एंगल कंप्लीट फॉर्म होगा, दिस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द डायमीटर। सो अगर हम एक कंप्लीट ट्राइंगल ABC को कंसिडर करें, सो 90 डिग्री प्लस A डिग्रीज प्लस 4A डिग्रीज विल बी इक्वल टू 180। सो यहाँ से अगर हमें A मालूम करना है, सो इक्वेशन विल बिकम 5A is equal to 90 degrees. So 90 divided by 5 will be equal to 18. So in this way जो value of A है वो हमारे पास आ जाएगी 18. So ये हमारे पास आ गया 18 and these two are the radius of the circle OC and OB. This means that C will be equals to 4A. Because दोनों angles form हो रहे हैं opposite to the radius, so these two angles will be equal. So C मालूम करते हैं by multiplying with 4 with 18, that is the value of A. So A will be equal to 18 multiplied by 4, that is 72. So value of C is 72 degrees. Now let's come to our question number 16. और इस 16 के अंदर हमें एक वेरिएबल मालूम करना है, दैट इज x। सो x मालूम करते हैं। सो इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, सो AC इज द डायमीटर। AC अगर डायमीटर है, सो द एंगल ऑपोजिट टू AC दैट इज दिस कंप्लीट एंगल D। ये जो कंप्लीट एंगल D है इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x मालूम करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सी द BC इज आवर कॉर्ड।
हमने बी सी को जो है वो एक कॉर्ड कंसिडर किया. सो हमारे पास जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर दिस ए बी इज द डायमीटर. सो अगर ए सी जो है वो हमारे पास डायमीटर है और डायमीटर के ऑपोजिट जो एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज इक्वल टू 90. सो एंगल बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये हमारे पास कंप्लीट एंगल जो फॉर्म हुआ इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो इस 90 और 35 की मदद से इस एंगल को हम मालूम कर सकते हैं. सो हम अगर सब्ट्रैक्ट करें 180 में से 90 एंड 35, सो विल गेट 55. ये एंगल हमारे पास आ गया 55. और with the help of this chord AB, इस chord AB की मदद से we can see that the angle X and angle 55, these two angles are formed with the same chord AB. So these two are the angles in the same segment of the chord AB. So the value of X will become equal to 55 degree. So in this way we have find the value of X. Now let's see our question number 17, जिसमें हमें एंगल E, F and G, ये तीन एंगल जो है वो मालूम करने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कॉर्ड CD. इस कॉर्ड CD की मदद से हमारे पास दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, द एंगल E एंड एंगल F. ये दोनों एंगल्स जो कि फॉर्म हो रहे हैं विद द सेम कॉर्ड DC. So in this way we can say that angle E will be equal to angle F because these two angles are formed with the chord CD and these two angles are the angles in the same segment, so these two will be equal. So one more thing that the central angle जो form हो रहा है 82 डिग्री का, it is formed with the chord CD और सेम chord CD से segmental angle भी form हो रहे हैं, that is E and F. So the relation between central angle and the segmental angle is such that the segmental angle is half of the central angle. So angle E जो कि इसका central angle 82 form हो रहा है, तो segmental angle E equal होगा 82 divided by 2, the half of the 82 that is 41 डिग्री. सो हमारे पास एंगल E 41 आ रहा है, सो F विल बी ऑल्सो बी इक्वल टू 41 डिग्री. सो इस तरह से हमारे पास ये दो वेरिएबल्स तो आ गए 41. देन वी हैव टू फाइंड एंगल G. सो एंगल G मालूम करना है. सो वी नो दैट एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम दैट OA is the radius, similarly OD is also radius. So अगर ये दोनों radius हैं तो दोनों बराबर होंगे and this angle opposite to them will also be equal. So अगर इस radius के सामने angle E form हो रहा है 41, so angle G will also be equal because this angle is formed with the opposite to the radius of this triangle. So in this question, a value of G will also be equal to 41 degree. So in this question, the value of E, F and G all are equal to 41. Then we have question number 18. और इस question में हमें ये angle मालूम करना है, that is the angle Z. सो एंगल Z मालूम करना है. सो हम यहाँ पर एक कॉर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, द कॉर्ड AD. और इस कॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर कॉर्ड AD और कॉर्ड BC इन दोनों कॉर्ड्स को अगर हम देखें, सो ये जो एंगल 40 फॉर्म हो रहा है इट इज फॉर्म बिटवीन द कॉर्ड AD और एंगल C जो यहाँ फॉर्म हो रहा है इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड विद द कॉर्ड AD. सो ये एंगल भी हमारे पास 40 डिग्रीज के बराबर होगा. इसी तरह से यहाँ जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है विद कॉर्ड BC और इट विल बी इक्वल टू 32 डिग्री बिकॉज यहाँ पर भी 32 डिग्री फॉर्म हो रहा है. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन OA and OB are the radius. So in this question OA and OB, these two are the radius of the circle. This means OA and OB ये दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर होंगे. सो एंगल A will be equal to एंगल B. ये दोनों एंगल्स हमारे पास बराबर होंगे. एंगल B पे we can see it is equal to 40
एंड एंगल ए पे हमारे पास दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वन इज द टाइनी जेड एंड द अदर इज 32. सो दोनों एंगल्स जो है वो आपस में बराबर हैं. सो वैल्यू ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू 40 माइनस 32, दैट इज 8. सो इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ जेड इज 8 degrees. Now let's see the last two questions in this exercise, that are 19 and 20. So सबसे पहले 19 देखते हैं, जिसमें हमें x और y ये दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है. सो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर एज वी कैन सी एंगल साइड AE and AD, these two sides are equal. This means that the angle opposite to them will also be equal. So जो एंगल x है यहाँ पर भी जो है वो x आएगा. और in this way, with the help of the triangle AED, we can find the value of x. 180 में से अगर हम 120 को subtract कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है एंगल x प्लस एंगल x प्लस 120. It is equal to 180 degree. So value of x will be equals to 180 minus 120 divided by 2. So 180 minus 120 60 divided by 2 equals to 30. So इस तरह से एंगल x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 30 डिग्रीज के. y मालूम करते हैं. सो फ्रॉम द क्वेश्चन ये जो कंप्लीट एंगल है इट इज इक्वल टू y, जिसका एक पोर्शन हम मालूम कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 30. सो अगर हम ये एंगल मालूम कर लें तो जिसके अंदर 30 ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y. एंड इन दिस क्वेश्चन द एंगल D एंड एंगल B, ये दोनों एंगल जो है वो ऑपोजिट एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के. सो इस एंगल D की वैल्यू मालूम करने के लिए अगर हम इसके ऑपोजिट एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सो दिस विल बी इक्वल टू 85. सो ये जो ऊपर वाला एंगल था हमारे पास यहाँ पर वो y के 85 के इक्वल हो जाएगा. एंड दिस कंप्लीट एंगल y विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 85 डिग्री. तो इस तरह से हमारे पास 115 वैल्यू आ जाएगी फॉर द एंगल y. सो इन दिस वे वी हैव फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल x एंड एंगल y. नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. एंड इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो वेरिएबल्स मालूम करने, दैट आर एंगल x एंड एंगल y. सो एंगल x एंड एंगल y ये दोनों जो है वो एंगल x एंड एंगल z. सो वन थिंग वी कैन सी दैट द कॉर्ड AB, ये जो कॉर्ड AB है इसका जो सेंट्रल एंगल है दैट इज एंगल x, और जो सेगमेंटल एंगल फॉर्म हो रहा है एट एंगल C, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल. सो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल जो है वो हाफ होगा. इसी तरह से वन मोर थिंग, द साइड OA एंड द साइड OB, these two are the radius of the circle. So अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब है कि इन रेडियस के ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे. इफ वन एंगल ऑपोजिट टू द रेडियस इज 50, सो यहाँ जो एक कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है इसकी वैल्यू भी हमारे पास 50 आएगी. सो इस 50 और 50 की मदद से अगर हम इस सेंट्रल एंगल को मालूम कर दें फ्रॉम द ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल OAB के अंदर हमारे पास दो एंगल्स 50 डिग्रीज हैं, द अदर इज x. सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस 50. सो वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएगी 80 डिग्रीज. तो यहाँ जो हमारे पास सेंट्रल एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज. ओके, सो वैल्यू ऑफ z मालूम करने के लिए वी कैन कंसिडर आवर ट्राइंगल AB एंड C. इस ABC ट्राइंगल को अगर हम गौर से देखें तो साइड AB एंड BC ये दोनों साइड जो है वो आपस में इक्वल हैं. AB इक्वल टू BC. सो AB और BC अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं, सो दिस मीन्स दैट द एंगल ऑपोजिट टू देम विल ऑल्सो बी इक्वल. सो यहाँ जैसे हमने कहा था कि एंगल x/2 के बराबर है, हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, वैल्यू ऑफ x इज 80. सो यहाँ जो एंगल C हमारे पास आ जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री के. सो ये एंगल हमारे पास अगर 40 डिग्री आ गया
तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो इक्वल साइड है, वन इज बी सी एंड दी अदर इज ए बी, तो यहाँ पर भी जो एंगल फॉर्म होगा इट विल बी इक्वल टू 40 बिकॉज ये दोनों साइड जो है वो बराबर हैं। और प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने देखा था कि ये जो कंप्लीट एंगल है दैट इज 50 और ये जो एंगल ए का कुछ पार्ट है दैट इज 40। सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस एंगल z is this tiny angle z is equal to 50 minus 40 that is equal to 10। So in this way हमने x और z जो कि वेरिएबल्स है इस क्वेश्चन में वो हमने मालूम किए।